So, welcome to this Hall of Fame interview. I am super excited for this beautiful session. Did I just lost you? Okay, Yeah. superb, superb. Welcome to this Hall of Fame interview. I am super excited to be doing this with Renee, my youngest student, and I'm super proud of you, Renee, for really reaching this level and really taking all the actions. What do you have to say, Renee? How excited are you to Um, be on this journey? I think I'm more excited than you How for sure because जो मैंने फील किया है इस जर्नी में everyone has different experiences. I know, and like I have now gone through that phase जो इतने ट्रॉमा से मैं जिस लेवल पे अभी पहुंचा हूँ, दैट इज द आई थिंक दैट इज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे काउंसलिंग सेशंस के बाद भी आई वाज नॉट एबल टू कम टू दिस काइंड ऑफ लेवल, जहाँ पे मेरे में एक आई वुड से कि एक मोटिवेशन ही नहीं था फॉर डूइंग थिंग्स, बिकॉज आई वुड फील कि नहीं यार, अभी तो क्या थक गया मैं कितना करूं, मैं ऐसा फील हो रहा था मुझे. बट देन थिंग्स चेंज्ड, things changed a lot, and thanks a lot to you for always motivating me. You are my biggest motivator, and thank really this community is uh, I would like to say that it has given me the power to overcome my own challenges and work towards life. Yes, yes. And for you, the life has just begun, right? Just begun. You're Yes, also yes. traveling to Australia now that you have cracked everything and you're going to, go and for your higher studies. So I will be asking you a few questions, Renee, so that, the audience also gets to know about this community and about the results that you were able to get. So, roughly about when did you join this community, Renee? I guess around July 2020, 2022 or 3, July 2023, I think. Yes. July Awesome. 2023. Awesome. And I would love to know about how was your life before joining the community and how has it completely transformed after joining the community, Renee? Um, Before joining the community, I would say I was mentally broken. Uh, my confidence, self-esteem was shaking, and I had a lot of problems with my dad, with my mom also. Uh, I was not able to, open up in front of audience for sharing my point of view. सब लोग मुझे यही बोलते थे कि तू क्यों इतना सहमा सहमा सा रहता है. And I was not able to speak in front of people. My confidence used to shake a lot, and I was like going into the phase of depression कि यार कुछ नहीं हो रहा है मेरे से, अब मैं लाइफ में क्या करूंगा. And vague thoughts were coming into my mind कि जो डिप्रेशन काइंड ऑफ थॉट्स कैसे होते हैं कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं होने वाला है जिंदगी में, बस पड़े रहो, कुछ नहीं होने वाला है. एंड आई वाज जस्ट लूजिंग होप कि यार अभी कुछ नहीं होने वाला है, लीव इट, फोकस ऑन समथिंग एल्स. बट आफ्टर ज्वाइनिंग योर कम्युनिटी मुझे लगा नहीं, कुछ तो है जो मेरे में है, एंड आई वांट टू प्रूव इट टू माय डैड. आई वांट टू प्रूव इट टू एवरीवन हु सेज बिहाइंड माय बैक कि ये कुछ नहीं कर सकता है, इसको कुछ नहीं आता है, एंड आई विल प्रूव इट टू देम. Superb. Superb. तो That's really amazing, Renee. Yeah, you were saying something. इन सब चीज़ों से मैं एक बार ट्रॉमा में चला चुका हूँ, एंड एवरी टाइम इवन आई नो कि मेरे डैड मुझे पुश करने के लिए ये सब कहते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रॉमा फेज आ जाता है कि व्हाई माय डैड इज टेलिंग दीज थिंग्स टू मी, कि हाँ मतलब, बट आई नो कि हाँ वो मुझे मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं.
बट फिर भी वो पॉइंट पे अभी भी द सीन इज के मैं वो झेल नहीं पाता था। तो मैं डैड पे भड़क जाता था, एंड आई यूज टू शाउट एट माई डैड, एंड माई डैड यूज टू से यू हैव नो राइट टू शाउट एट मी, आई एम एल्डर टू यू। बट मैं डैड को ये समझाने की ट्राई करता था कि डैड आप जो बोल रहे हो उस पर मेरे मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? बट स्टिल कभी कभी मुझे आफ्टर आई थिंक 2-3 hours ऑफ मी हैविंग अ क्वारल विद माय डैड, मेरे को समझ में आता था कि नहीं यार, ये मैंने तभी ऐसे नहीं बोला होता तो आई वुड हैव बीन मतलब मैं डैड की बातों को समझ ही नहीं पाता हूँ कभी भी, क्योंकि वो पॉइंट पे जब डैड बोलते हैं तभी एक ट्रिगर शूट हो जाता है मेरा, एंड तभी आई मुझे खुद में ही लाइक आई डोंट नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ वो पॉइंट पे। सो अभी दैट थिंग हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, मेरा मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो गया है, मेरा कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम बहुत इम्प्रूव हो गया है। पास्ट ट्रॉमास इन लाइफ जो मेरे थे वो थोड़े थोड़े से इम्प्रूव होने लगे। Yes. ऑब्वियसली मेरी मॉम जर्मनी में है एंड शी वेंट विदाउट माय कंसेंट, और मुझे अभी भी लगता है कि यार शी शुड थिंक ऑफ द फैमिली फर्स्ट रादर देन हर सेल्फ, ऐसा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मैं ब्लेम क्यों कर रहा हूँ उनको, Mm, मैं yes. क्यों ब्लेम कर रहा हूँ उनको? Yeah. मेरे में कैपेबिलिटी है तो मैं भी उधर पहुंच के दिखाऊंगा ना, लेकिन मैं ब्लेम क्यों कर रहा हूँ? उनके खुद के मजबूरियां थी, उनके खुद के इश्यूज थे जिसके कारण उनको जाना पड़ा, डेफिनेटली। True. बट मैं ना आई यूज टू ब्लेम हर अ लॉट कि नहीं शी शुड थिंक अबाउट मी। एक टाइप से मेरे को लगा भी कि इट इज लाइक कि शी शुड थिंक अबाउट द फैमिली फर्स्ट देन हर सेल्फ, बट फिर भी आई फेल्ट कि व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन थिंकिंग कि उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसी है, ये बुरी है। मतलब आई एम मेकिंग पीपल इन अ सर्टेन कैटेगरी जो Yeah. मुझे भी नहीं पता है कि वो ऐसे लोग हैं। Yes. शी इज माई मदर, शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट मी, नो डाउट, लेकिन फिर भी मैं उनको ये बोलता रहता हूँ कि नहीं, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, ये मेरे लिए ये नहीं कर रहा, उसने मेरे लिए वो नहीं करा। शी डिडंट फाइट फॉर माई एडमिशन इन जर्मनी, शी डिडंट डू एनीथिंग फॉर मी। बट मैं, हाँ, बट लेटर ऑन मुझे ये समझ में आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। Yes. The आई awareness शुड developed. आई शुड नॉट डू इट। True. ऑल True. थैंक्स टू द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, जब मैं धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लग गया तो Mm. मुझे ऑटोमेटिकली आई बिकेम सेल्फ अवेयर ऑफ थिंग्स रादर, Yes. Yes. मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए। Super. और मेरी एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं लोगों के सामने ना बहुत आर्टिफिशियली बिहेव करता था। Mm. Correct. तो आर्टिफिशियली बिहेव करने में ना आई थॉट कि पीपल का जो परसेप्शन है मेरे बारे में वो चेंज हो जाता है। Mm. सो वो मेरा चेंज हो गया। Super. एवरी टाइम जो मैं कंप्लेन बॉक्स, डैड अर्लियर यूज्ड टू कॉल मी अ कंप्लेन बॉक्स, Mm. कि तू कंप्लेन ही करता रहता है, वो बंद हो गया। Wow. अभी डैड भी मेरे को बोल रहे थे कि यू स्टार्टेड टू इम्प्रूव, Wow. एंड दूसरी बात ये है कि आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर द सेल्फ लव चैलेंज दैट यू डिड। तो सेल्फ लव से भी मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आया कि मैं अपने पे ध्यान दे रहा था। आई यूज्ड टू फोकस, आई एम रियली फोकसिंग ऑन माई सेल्फ राइट नाउ। Yes. अभी एक वेबिनार भी है कि मुझे मेरी बुक पब्लिश करनी है। Wow. दिस विल बी माई फर्स्ट बुक एवर। सो Superb, Renee. Superb accomplishment. Trust me, when you become an author, there's a lot of credibility that you earn. So, बहुत ही अच्छी बात है. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, रेने. I'm so proud. I mean, it's not even a year, and within a year, you are able to really transform your life in and out, right? And you are now the guy who had joined the community, who was वो सहमा सहमा सा लड़का मैं देखती थी कि शांत रहता है, ज्यादा शेयर नहीं करता. But eventually you started sharing, you started opening up, you started sharing your wins as well.
So I would like to ask you, Renee, you had, you had in the initial days, you had shared with me that you are confused about कि ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कहाँ करूँ क्या करूँ, फ्यूचर में आगे मैं क्या कर सकता हूँ, आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ पाथ. But now that we see you have your path ready, you know what you want to do, you know where you want to go. तो वो ऑस्ट्रेलिया का जो एडमिशन हुआ वो कैसे हुआ, एंड व्हाट वर द रेवलेशंस दैट हैपेंड फॉर यू, वो मुझे अच्छे से, मतलब मुझे जानना था रानी. जो एडमिशन हुआ दैट वाज इन टेफ. वहाँ का जो लाइक आई ऑप्टेड फॉर अ सर्टिफिकेट कोर्स इन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, क्योंकि उधर ऐसा सीन है कि सर्टिफिकेट कोर्स के बिना आपको जॉब नहीं मिलता है. वी करेक्ट. नीड टू डू समथिंग. माय डैड्स फ्रेंड वाज इंसिस्टिंग मी कि तू मास्टर्स कर ले, बट मेरे को लगा कि मास्टर्स में आई थिंक बहुत टाइम लग जाएगा. एंड आई एंड माय डैड आर गोइंग अलोन, सो मेरे डैड का भी अभी ऐसा है कि मतलब अभी थोड़ा सा अर्निंग में आई थिंक के इन्फ्लेशन बहुत है उधर. सो Yes. उधर ऐसा है कि एवरीथिंग हैज गॉन एक्सपेंसिव. Correct. Correct. Even yesterday night I and my dad were seeing flats and houses over there. So वो भी बहुत एक्सपेंसिव थे. तो एक टाइप से मेरे को भी लगा कि यार हम लोग एक्सपेंस कैसे बेयर करेंगे उधर, अपना इनकम नहीं होगा तो. Yes. डैड मेरे को बोल रहे थे कि उसका टेंशन तू मत ले, एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक, नो डाउट. बट फिर भी एक दिमाग में होता है ना कि नहीं कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज हाउ विल वी बेयर आवर ओन एक्सपेंसेस देयर. सो मी एंड माई डैड बोथ हैव टू वर्क Yes, ओवर देयर. absolutely. सो एक बार तो मेरे को ये भी लगा कि जो मेरे को प्रोविजनल एडमिशन मिला है टेफ में, क्या मैं उसको कंटिन्यू करूं, बिकॉज द फीस आर बॉम्ब. सो आई डोंट थिंक कि वो टाइप के फीस मैं अभी पे कर सकता हूँ. Mm-hmm. तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाया है, उसमें आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ जॉब ऑफर्स राइट नाउ. Mm. इफ आई एक्सेप्ट वन जॉब ऑफर, और इसीलिए ये सब मैं, मतलब माय मेन मोटिव वाज दैट ओनली, कि ये जो बुक लिख रहा हूँ, आई हैव इवन स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल आल्सो. मैं Mm. धीरे धीरे उसको भी बिल्ड करूंगा. Yes. एंड आई ट्राई नाउ आई हैव स्टार्टेड एडिटिंग माय ओन वीडियोस फॉर जीआईएस. Wow. तो एक क्या होता है कि मुझे जॉब लेने में इजी हो जाएगा Yes. ओवर देयर, बिकॉज जो इंटरव्यूअर मेरी प्रोफाइल देखेगा, he will be prepared only, he will be prepared कि मैं ऐसा बंदा हूँ और मैं इस काम के लिए आ रहा हूँ, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स इन दिस फील्ड. Yes. Yes. तो उसका इंटरव्यू लेने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा. Mm. Wow. Super. Awesome. Thank you so much, Rene, for sharing that. Um, मुझे एक और चीज जाननी थी कि after you joined the community, there were some very prominent changes that we all in the community could notice, that your confidence has gone up and all the things. So can you just share about what exactly happened, like tangible as well as intangible, what are the things that happened with you? If you can just, you shared it with me a couple days back, right? You can share that with the audience. आई वुड जस्ट से कि पहले आई वाज लाइक, मैं अपने खुद के इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करता था. Hmm. मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ. बट लेटर आई केम टू अ कंक्लूजन कि नहीं, जो भी हो रहा है लाइफ में इस मर्जी से नहीं हो रहा है. एंड मर्जी से भी हो रहा है, बट यू नीड टू एक्सेप्ट द सिचुएशन व्हाट यू आर डीलिंग विद. मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है. So, मतलब आई यूज टू फील के a lot of times I used to think कि यार लोग इतना सब कर रहे हैं, why am I not able to do it. उससे भी क्या हो रहा था कि मेरा सेल्फ
एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया। और Correct. वो इतना दिख रहा था, इतना दिख रहा था कि मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरे वे ऑफ डीलिंग विद पीपल में, सब जगह वो चेंज नजर आ रहा था। तो So, वो एकदम से बूस्ट हुआ है। wow. और आई यूज टू गुजराती में एक सेइंग है कि सूचको पढ़ो। मतलब द अमाउंट ऑफ उसको हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, कि द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू नीड टू डू एनीथिंग, एक कॉमन नॉलेज होता है, एक हाँ. कॉमन सेंस होता है फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो नहीं था मेरे में। Got it. मतलब मुझे समझ में नहीं आता था पहले कि नहीं, अगर मैं ये सिचुएशन में हूं तो मुझे वो सिचुएशन से डील कैसे करना चाहिए। Hmm. अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, बट बहुत बड़ी सिचुएशंस आ जाती है कि हाँ, बाद में लगता है कि नहीं, अभी इसको कैसे डील करने, अभी हाउ कैन आई डील दिस सिचुएशन। उसके लिए मैंने थोड़े स्टिकर्स चिपका के रखे Oh, कि नहीं, wow. ऐसी सिचुएशंस आएगी तो शायद मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ, शायद मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। True. Superb. And as I keep on saying, right, this is a lifelong journey. Healing your inner child, childhood traumas and wounds, वो तो continue करना ही है हमको, उसके लिए stop नहीं होना चाहिए. Healing is priority, right? But the kind of transformation that we were able to see in you was next level, Renee. So thank you so much for being that inspiration for so many people inside the community, right? So many people reach थैंक out to यू। you and they tell you that you are an हाँ, inspiration, right? So thank you so much for being that inspiration. ये And yesterday ओनली रात को आई थिंक 2 बजे रुचि मैसेज मी कि नहीं, मेरे लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है एंड आई नीड टू टॉक टू यू। yes, सो yes, आई नीड अ कप। वो बोल नहीं पा रही है एक्चुअली। आई yeah, थिंक उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगा अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। वो बोल नहीं पा रही है मुझे, बट उसने मेरे को लिखा okay, है कि आई नीड अ डे और टू टू कम बैक टू व्हाट। मेरे exactly. दिमाग से थोड़ा क्लटर थोड़ा हट जाएगा, फिर आई शांति से कॉल यू एंड टेक्स्ट यू। Yeah, yeah. So तो this मुझे तभी community is there for, we are all there for each other and yeah, एंड true that, मैंने उसको बोला कि तू टेंशन मत ले, बिल्कुल आई एम देयर इन द Yes, मिडल ऑफ द नाइट ऑल्सो, एनी टाइम यू फील, कुछ भी हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। it's amazing, amazing. That's the power of the community. Thank you so much for being there for her. नो इश्यूज, माय प्लेजर। रुचि इज देयर फॉर मी ऑल द टाइम, खुशबू इज देयर फॉर मी ऑल द Yes, टाइम। आई yes, एम देयर फॉर ईच एंड एवरी वन इन द कम्युनिटी। absolutely. इवन आपने भी मैसेज किया था मुझे कि देयर इज अ गाय हु नीड्स हेल्प, Yes, yes, मेरे एज का ही है। yes, yes. सो So you are going to be a mentor for many people coming into the community. So all डेफिनेटली, the best for that. डेफिनेटली आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन टू असिस्ट हिम। So sweet. One last question, Renee. यस What यस। is now that you have, gone through this entire journey of healing your inner child, experience that transformation, what are your top three success principles which you believe that will get anybody the success that they want in their life? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बट एक चीज तो है कि गिव अप तो नहीं करना चाहिए। मेरी आदत थी पहले कि मैं ना छोड़ देता था, नहीं हो रहा है ना, छोड़ दो, चीजें छोड़ दो पहले। लेकिन ये छोड़ने से कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्ट इन छोड़ने से कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा सिचुएशन और डिफिकल्ट होने लग गया था। इतना सारा काम करना है, बाद में पैनिक हो जाते हैं हम लोग। आई फील पैनिक्ड कि हाँ नहीं, इतना सारा बचा है, इतना कम टाइम है, और फिर पैनिक में और काम नहीं होता है। सो द मेडिटेशन आई वॉज डूइंग हेल्प्ड मी अ लॉट टू काम माई सेल्फ कि हाँ नहीं, कुछ भी है ना, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। टेंशन मतलब माई डैड ऑल्सो कीप्स ऑन टेलिंग मी कि जो भी चीज़ होती है ना, एक रीजन के लिए होती है। अगर कुछ भी चीज़ नहीं हो रही है ना, तो डोंट लूज होप, एंड
गॉड ने कुछ ना कुछ तो हमारे लिए किया है. द यूनिवर्स हैज प्लान्ड समथिंग फॉर अस, एंड ही इज द ओनली वन हु इज कंट्रोलिंग आवर सिस्टम. सो अगर हमसे कुछ नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दैट वी आर लैकिंग समवेयर, एंड द यूनिवर्स वांट्स अस कि हम वो चीज करें. क्योंकि देखो 30% या 50% हम लोग करेंगे तो 50% यूनिवर्स विल पुश अस टू डू दैट. सो द थिंग इज दैट कि हम लोग ही अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो यूनिवर्स हमको बोलेगा ही नहीं कि तुम ये करो. तो हम लोग फॉर एग्जांपल अभी लेटली आई एम फीलिंग कि नहीं, मेरे सिस्टम को मुझे सुधारने की जरूरत है. रात को बहुत लेट हो रहा है सोने में, सुबह 12-12 बजे उठ रहा हूँ मैं. सो आई नीड टू चेंज माई सिस्टम. बिकॉज बाद में क्या होता है कि योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट टू टेल यू कि अ, ये तो ऐसा ही है, इससे होने नहीं वाला है. एंड ही विल मेक श्योर कि तुम ये चीज ना करो. yes. So first is never give up. Second is next to. एक्सेप्टिंग माई इमोशंस आई वुड से. Amazing. पापा Yes. मेरे को बोल रहे थे कि गो विद द फ्लो. मतलब जो भी इमोशंस, इवन मेडिटेशन में भी लाइक आई फील के मेडिटेशन मैं करता हूँ तो बहुत सारे इमोशंस आते हैं, बहुत सारे इमोशंस आते हैं. एंड मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, द इनिशियल डेज आई स्टार्टेड टू मेडिटेट, मेरे को सारे नेगेटिव इमोशंस ही आ रहे थे. लाइक कंप्लेनिंग काइंड ऑफ इमोशंस, कि मेरी मॉम मेरे साथ ये कर रही है, मेरे डैड मेरे को हमेशा चिल्लाते रहते हैं. एवरी एवरी पीपल थिंक्स दैट आई एम नॉट वर्दी इनफ, कि हाँ ये है वो. मतलब उस टाइप के थॉट्स आ रहे थे जो मेरा सेल्फ एस्टीम और मोटिवेशन डाउन कर देते थे. लेकिन आफ्टर वर्ड्स व्हेन आई स्टार्टेड टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एज, मैं जैसा भी हूँ, मेरे इमोशंस जैसे भी है, मैं उनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ. सो द थिंग वाज के दैट चेंज्ड माय परसेप्शन अबाउट व्यूइंग थिंग्स. कि हाँ लोग बोलेंगे, एक ना बहुत बड़ा सेइंग है, एंड देयर इज अ सॉन्ग रिटन, देयर इज अ बुक आल्सो विद दैट टॉपिक. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. पीपल विल से समथिंग, बट इट इज यू हु हैज टू डिसाइड वेदर टू टेक दैट सेइंग इनटू अ पॉजिटिव affirmation or a negative affirmation to yourself. There are two ways of accepting the things. हाँ ये लोग मुझे बोल रहे हैं, मैं कैसे उसको लूँ. मैं, the interpretation of things in your mind changes the perception of the entire thing. फॉर एग्जाम्पल मेरे डैड मुझे बहुत बार ये बोलते हैं कि तू कुछ करता ही नहीं है, यू आर अ लेजी बम, एंड यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. You just need to structure your life, and you just need to push yourself to that boundary जहाँ पे तुझे recognition मिले, and uh, you start to being recognized by people. And रेने नाम का कोई बंदा है, ये टाइप का तुझे करना है. एवरी टाइम माई डैड यूज टू से कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट डूइंग. हाँ मुझे भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. देयर इज नथिंग बिग जो मैंने कर दिया है अभी, बट फिर भी एक मोटिवेशन अंदर से ही आ रहा है मुझे. मेरे डैड ने बोला है, आई अग्री, और मैं खुद में भी देख रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट आई डू इट, आई डू इट. एंड अगर एक बार वो चीज हो गई ना, देन आई शो इट टू हिम कि नहीं ये देखो आपने बोला था ना, ये हो रहा है अभी. Yes. मतलब डैड भी मेरे को यही बोलते हैं कि एक ना लाइफ में एक टाइम आता है, लाइक इफ यू आर ऑन अ लेवल, फॉर एग्जांपल अगर आपका लाइफ में 3x ग्रोथ होने वाला है फॉर एग्जांपल, सो अगर आप ये लेवल पे हो ना, सो आपका वो ये लेवल के हिसाब से आपका 3x ग्रोथ इतना हो जाएगा. लेकिन अगर आप ऑलरेडी ये लेवल पे हो ना, तो आपका 3x ग्रोथ इतना हो जाएगा. Hmm. द ग्रोथ इज द सेम 3x, बट अगर आपका बेस बहुत स्ट्रांग है, True. so your reach will be far more ahead than what you have thought. Yes. Yes. So Awesome. Awesome. यही चीज से अभी मैं वर्क कर रहा हूँ.
Yeah. Superb, yeah, कि Rene. Amazing, amazing, amazing share. Thank you. Thank you so much. And one last, the third one, if you want to share quickly, if you can just uh, put it up. I would say mm, बहुत सारे behavioral changes आए, Yes. बहुत सारे. मैं मेडिटेशन कर रहा था तभी भी आई वाज फीलिंग अ लिटिल बिट. मेडिटेशन इटसेल्फ वाज ब्रिंगिंग मी टू दैट मोमेंट जहाँ पे मैं, मेरे डैड, मेरी मॉम, मेरे दादी माँ, सब लोग की जो मेमोरीज है वो आ रही थी दिमाग में. So एंड focusing on your behavioral changes, that's what is one of the success principle that you would like to share. Okay. हाँ, Super. द वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स जो मेरा पहले था वो बहुत चेंज हो गया. Yeah. एंड द वन थिंग दैट आई लाइक्ड इज दैट मैं यही सोचता था साला कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में, आई शुड लीव एवरीथिंग. जो बैकआउट करने का जो मेरा वो था ना, अभी भी कभी कभी होता है बट मोस्ट केसेस में नहीं होता है अभी. Of course, of course. मेरे डैड मेरे को यही बोल रहे थे कि तू जो चीजों से भागता है ना, अभी भी तू भागता है, लेकिन पहले बहुत भागता था, अभी भी हाँ, बहुत भागता है तू. अभी कम हो गया. मुझे मुझे आइल्स देना होता है, अभी भी हुआ था मुझे कि मुझे आइल्स देना था. मैं प्रिपेयर करता था बट मैं फिर भी एक होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा फील नहीं आता है कि नहीं जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग नहीं आ रहा था मेरे में. सो उसके चक्कर में हो क्या रहा था कि आई वाज अ लिटिल बिट पुश्ड बैकवर्ड्स कि नहीं यार क्या, जो डिलेमा स्टेज होता है वो आ जाता है फिर Yes, yes. कि. Super. करते रहो, बट Rene. Continue this journey. This is going to take you leaps and bounds. Already Australia, admission is done now. You just need to skyrocket your journey, है ना? And you know that the entire community and I'm always, always there for you. Always there to stand behind you. I'm always there for you. You दिस इज just माई go बिगेस्ट ahead, सपोर्ट राइट नाउ. be absolutely द successful. मोस्ट बिगेस्ट सपोर्ट राइट नाउ. And I'm going to be there. Lifetime, right? Lifetime commitment. So डेफिनेटली डेफिनेटली. all the very best for this Australia. And I'm sure you're going to crack it. You're going to really, really be successful in all the areas of your life. Thank you so अभी much for being that inspiration for every single person inside the community. So डेफिनेटली awesome. डेफिनेटली एंड आपके बिना नहीं हो पाता ये, बिल्कुल Thank you. Thank you, sweetheart. बिल्कुल आपके बिना नहीं हो पाता. एंड I'll really look forward to inspire a lot of people. In fact अभी ये एक बार बुक पब्लिश हो जाए ना, फिर मैं एक इनर चाइल्ड हीलिंग पे भी एक बुक लिखूंगा. Superb. Superb. फिर भी एक, हाँ, थिंग इज कि मैं लिखूंगा एंड Awesome. डेफिनेटली लिखूंगा मैं, Absolutely. बिकॉज दिस हैज ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंज इन मी. Yes. Thank you so much once again, Rene. We'll end this recording. Thank you. Thank you so much.